نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں. لیکن شیعہ ذاکرین نے اس موضوع کو اس طرح اپنا موضوع خاص سخن کا موضوع بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر تقریر میں ہر ذاکر اپنی مجلس میں تقریباً اس مسئلے کو بیان کر کے اپنی پوری طاقت اور اپنی قوت پوری صرف کرتا ہے کہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، 3 بیٹیوں کا وہ انکار کرتے ہیں. حالانکہ وہ اپنی کتابوں سے بھی ظاہر ہیں اور اپنی کتابوں کو شاید انہوں نے کبھی اٹھا کر نہیں دیکھا کہ اہل تشیع کی جو مستند اور معتبر ترین کتابیں ہیں، قرآن مجید کے بعد جو ان کی معتبر ترین کتابیں ہیں، ان میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ سیدہ خدیجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹی ہیں. اہل سنت کا موقع بھی بالکل اس مسئلے پر واضح ہے. قرآن مجید کی آیت پڑھ کے انشاءاللہ میں اہل تشیع کی معتبر کتابوں سے اس پر ریفرنسز حوالہ جات پیش کروں گا اور پھر چند شبہات کی ازالے بھی انشاءاللہ کروں گا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک پلہ ایک حصہ اپنے چہروں پر ڈالے رکھیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں لفظ کلمہ بنتن کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ بناتے کا فرمایا. بنتن واحد کو کہتے ہیں، ایک بیٹی ہو تو اس کو بنتن کہتے ہیں، اور 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو ان کو بنات کہتے ہیں. عربی میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بنات کا کلمہ استعمال فرمایا جو کہ جمع ہے، اور اس کا کم از کم کا جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں. تو قرآن مجید کے اس کلمے سے بھی بالکل واضح ہوا. باقی اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں اس مسئلے کو بالکل پوری شرح و بس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے الاصول من الکافی. ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی شیعہ کے معتبر ترین محدث ہیں. قرآن مجید کے بعد شیعہ کی سب سے معتبر ترین کتاب اہل تشیع کی یہ اصول کافی ہے. اس کا ابواب التاریخ جلد 1 صفحہ نمبر 227 پر علامہ کلینی صاحب لکھتے ہیں، فَوَلِدَ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضور کی جو اولاد ہوئی، القاسم و رقیۃ و زینب و ام کلثوم، کہ حضرت قاسم ہے، رقیہ ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں. وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَةُ، اور بعثت کے بعد حضرت طیب و طاہر اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے اور حضور کی بیٹی پیدا ہوئی. تو شیعہ کی معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر مختلف طریقوں سے اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں موجود ہے. الفروع من الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 721 پر یہ کلمات موجود ہے، لما ماتت رقیۃ ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام کی بیٹی ابنۃ رسول اللہ، حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. تو یہاں بھی ابنۃ رسول اللہ لکھا ہے. تعظیم الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 پر شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے. درود پاک کے کلمات یہ لکھے کہ رمضان میں اکثر جو درود اور اکثر دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں کون سی؟ اللہم صلی علی القاسم والطاہر ابن نبیک، اللہم صلی علی رقیۃ بنت نبیک ولعن من آذى نبیک فیہا، اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک ولعن من آذى نبیک فیہا، اللہم صلی علی ذریۃ نبیک. تو یہاں بھی نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر موجود ہے کہ حضور کی بیٹیوں پر بھی یا اللہ درود و سلام بھیج. الاستبصار یہ شیعہ کی کتب اربع میں سے کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر یہ بات موجود ہے، انا زینب بنت نبی توفیت، جب نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب کا انتقال ہوا، وانا فاطمہ خرجت فی نسائہا، تو سیدہ فاطمہ عورتوں کے ساتھ باہر نکلی، فصلت علی اختہا، تو حضرت فاطمہ نے اپنی بہن کا جنازہ پڑھا. صلت علی
उख्तिहा अपनी बहन सैयदा ज़ैनब का हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाजा पढ़ा। अल खिसाल शेख सदूक की सफा नंबर 468 पर भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों का जिक्र मौजूद है जो कि सैयदा खदीजा से हैं। हयातुल कुरूब की जिल्द 2 सफा 870 पर मुल्ला बाकर मजलिसी ने भी इस बात को तस्लीम किया कि सैयदा खदीजा से नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां हैं। शेख सदूक ने अपनी किताब अल अमाली सफा नंबर 336 पर हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों को तस्लीम किया। शेख मुफीद ने अपनी किताब अल इरशाद सफर नंबर 45 और 46 पर लिखा कि हजरत अली ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटियों को हुजूर की अज़वाज, हुजूर की घर की औरतों को हिजरत के मौके पर जमा किया। व जमा बनाते ही व निसा अहले ही, हुजूर की बेटियों और हुजूर के अहले खाना औरतों को जमा करके हजरत अली ने उनको हिजरत मदीने तक करवाई। यहां भी हुजूर की बेटियों का जिक्र मौजूद है। फुरूए काफी जिल्द 5 सफर नंबर 1353 पर यह कलिमात मौजूद हैं। मा ज़व्वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सायरा बनाते ही वला तज़व्वजा शय्यन मिन निसाही अला अक्सरा मिन इस्नता अशरा औक़िया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब शादियां फरमाई, निकाह फरमाया अपनी बीवियों का, और सायरा बनाते ही और अपनी तमाम बेटियों का 12 औक़िया से ज्यादा हक महर मुकर्रर नहीं किया। तो यहां भी सायरा बनाते ही हुजूर की बेटियों का जिक्र है, सारा बिनते ही का लफ्ज नहीं है बल्कि हुजूर की बेटियों का जिक्र है। और बिनात का लफ्ज कम और कम 3 पर उसका इतराक होता है, जमा का लफ्ज सीगा है। कुर्बुल इसरात के सफा 9 पर अल्लामा हिमयरी ने भी हुजूर की 4 बेटियों को तस्लीम किया। शिया की मोतबर आलिम है। मनाकिब आले अबी तालिब इब्ने शहर अशोक सफा 130 पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों का जिक्र मौजूद है कि हुजूर की 4 बेटियां हैं। मुंतहल अमाल शेख अब्बास कुम्मी शिया के मोतबर आलिम है। जिल्द 1 सफा नंबर 151 पर हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों को तस्लीम किया है। अनवारे नुमानिया नेमतुल्लाह जज़ायरी जिल्द 1 सफा नंबर 340 पर हुजूर की 4 बेटियों को तस्लीम करते हैं। मुंतखब तवारीख में अल्लामा हाशिम खुरासानी शिया आलिम सफा 23 पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों को तस्लीम करते हैं। नहजुल बलागा में हजरत मौला अली ने जो उस्मान गनी को खत लिखा, तो उस खत में मौला अली फरमाते हैं, सफा 430 है, कद निलता मिन सहरिही मालम यनाला, कि ऐ उस्मान तुम्हें रसूलुल्लाह की वो दमादी हासिल है जो अबू बकर उमर को हासिल नहीं थी। यानी तू रसूलुल्लाह का दोहरा दमाद है, जबकि अबू बकर उमर को यह फजीलत हासिल नहीं थी। मौला अली ने भी इस बात को तस्लीम किया। ज़बे अजीम के सफा 36 पर औलाद हैदर फौक बिल ग्रामी ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का तज़किरा करते हुए ये लिखा है, लिखते हैं, और ये वो हुसैन है जो अपनी खाला और अपने मामू के एतबार से सब लोगों से अफजल है। आपके मामू तो कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम है, और खाला ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम है। तो ये मसला भी वाला भी बिल्कुल वाज़ेह करता है कि हज़रत ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हमशीरा हैं और उनकी सगी बहनें हैं। तारीख़ यकूबी के जिल्द 2 सफा 14 पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों को तस्लीम किया। शिया उलमा ने मजालिसुल मोमिनीन काजी नूरुल्लाह शोस्त्री की किताब है, जिल्द 1 सफा 204 पर हुजूर की 1 से ज़ायद बेटियों को तस्लीम किया। तनकीहुल मकाल अल्लामा अब्दुल्ला मामकानी शिया का बहुत बड़ा अस्मा और रिजाल का आलिम है। जिल्द 3 सफा 73 पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों को तस्लीम करता है। तहजीबुल अहकाम जिल्द 3 सफा नंबर 457 पर भी जो शिया की कुतुब अरबा में से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों को तस्लीम किया गया। तो शिया की मोतबर और मुस्तनद तरीन किताबों से मैंने 20 हवाला जात बिहम्दि ताला आपके सामने रखे हैं कि ये शिया के मोतबर उलमा इस बात के कायल हैं और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं? 4। हज़रत ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। लेकिन शिया ज़ाकिरीन पता नहीं इस मसले से क्या निकालना चाहते हैं, या अपनी आवाम को क्या वो
डुगडुगी बजा के गुमराह करना चाहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी 3 बेटियों का इनकार करके हुजूर अलैहिस्सलाम को भी अजियत देते हैं और सैयदा फातिमा ज़हरा की 3 बहनों का इनकार करके सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी अजियत देते हैं। यकीनन जब किसी की बहनों का इनकार होगा कि ये उसकी बहनें नहीं है, तो जिसके बारे में इनकार किया जाएगा यकीनन उसको इससे अजियत और तकलीफ होगी, दुख होगा, रंज होगा। तो ये बिहम्दिल्लाह हवाले इस बात को वाज़े और बय्यन इसका सबूत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां। अब इस पर शिया ज़ाकिरीन की तरफ से मुख्तलिफ इश्कालात उठाए गए हैं, उन इश्कालात के इंशाअल्लाह मैं जवाब भी दूंगा। उनमें से जो बहुत बड़ा एक इश्काल मुख्तलिफ शिया ज़ाकिरीन की तरफ से उठाया गया है वो ये है कि देखें जी, तारीख में यूं आता है, तारीख में कुछ यूं है, तारीख में कुछ यूं है। ये बात समझिए कि जितनी भी तारीख की बातें होती हैं उनमें से अक्सर और बेशतर बातें वो होती हैं कि जिनमें कोई एग्जैक्ट और हतमी नतीजा और फैसला नहीं होता, जिस पर इजमाई तौर पर, इत्तिफाकी तौर पर इत्तिफाक और इजमा नहीं होता। बाज़ तारीखें मशहूर होती हैं लेकिन उस पर इत्तिफाक होना जरूरी नहीं है। अब इस पर जो शिया ज़ाकिरीन की तरफ से एतराज उठाया जाता है, देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी हुजूर की जब सईदा खदीजा से शादी हुई, निकाह हुआ, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हुई, फिर बाद में औलाद हुई। 30 साल की उम्र के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम के बेटे पैदा हुए, फिर हुजूर की बेटियां पैदा हुई और नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले पहले बेटियों की शादी भी कर दी गई थी, उनको तलाक़ें भी हो गई थी। ये किताबों में तारीख इस तरह लिखी हुई है। लिहाजा इन तारीख की बातों के होते हुए ये बात हमें तस्लीम, तारीखी बातें हैं और ये कोई इनमें ऑथेंटिक और हतमी बात नहीं है। हतमी बात नहीं है, कतई बात नहीं है कि जिस पर हम इजमाई हुक्म लगा दे कि ये बात बिल्कुल कतई है। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह के वक्त उम्र पाक कितनी थी? अब हम शिया उलमा से पूछ लेते हैं, जो शिया के मोतबर उलमा उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारा इस बात पे इत्तेफाक है कि हुजूर की उम्र मुबारक एग्जैक्ट इतनी थी जिस वक्त हुजूर की शादी हुई? तो शिया इस पर मुत्तफिक नहीं है। यह किताब है उसूल काफी। उसूल काफी की पहली जिल्द सफा 227 पर अल्लामा अबू जाफर मोहम्मद बिन यकूब अल कुलैनी ने जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के निकाह का जिक्र किया तो लिखते हैं वह तज़व्वजा खदीजा था वह इब्नु बिदअ व इशरीन सना। जब हुजूर की सईदा खदीजा से निकाह हुआ, शादी हुई, तो हुजूर की उम्र बिदअ व इशरीना 20 और कुछ साल थी। 20 और कुछ साल, 25 साल एग्जैक्ट नहीं कहा, 20 और कुछ साल थी। ये तारीख है, ये अबाबु तारीख है उसूल काफी का। अब ये बहुत बड़े शिया आलिम हैं अल्लामा अब्दुल्ला मामकानी तनक़ीहुल मकाल फी इल्म रिजाल जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 73 पर अल्लामा मामकानी लिखते हैं कानत खदीजा तु इदा इज़ ज़व्वजहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन्त 40 सना व 6 अशहुर व काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमा इज़िन इब्नु 21 सना कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सईदा खदीजा से शादी हुई, निकाह हुआ, हुजूर की उम्र उस वक्त 21 साल थी। कितनी साल? 21। अल्लामा मामकानी ने 21 साल लिखा और अबू जाफर याकूब कुलैनी ने उसूल काफी में बिदअ व इशरीन 20 और कुछ साल लिखा। ये अहले तशय्युअ के यहाँ है और अहले सुन्नत के यहाँ भी उलमा ने तारीख की किताबों में इस तरह लिखा है। इमाम इब्न अब्दुल बर उंदलसी ने अल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब, अल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक निकाह के वक्त 21 साल लिखी है और बाज़ उलमा ने 25 साल भी तहरीर की है। तो लिहाजा ये तारीखी बात है, ये कोई एग्जैक्ट किसी इस मसले पे फैसला नहीं है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अमजाद कब पैदा हुई, इसमें भी अल्लामा मामकानी ने तनक़ीहुल मकाल में सफा 7-9 जिल्द 3 के सफा 7-9 पे लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली औलाद हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त पैदा हुई जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र पाक 30 साल थी। हुजूर की उम्र 30 साल थी। ज़ाहिर 40 साल में ऐलान नबूवत किया और 30 साल की उम्र में जो बच्ची पैदा हुई, 40 साल की उम्र तक उसकी उम्र कितनी बन गई? 10 साल। उसकी उम्र 10 साल हो गई। तो अब ये अगर कोई बंदा कहे कि 10 साल की बच्ची की शादी होकर रुखसती नहीं हो सकती, तो ये अपने माहौल के एतबार से तो कोई कह सकता है, लेकिन मुआशरा अरब के एतबार से ये बात कोई मायूब या कभी नहीं है। बल्कि अरब के हाँ ये
چلتا تھا ان کا طریقہ کار کہ چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کر دیتے تھے، حتیٰ کہ نابالغ بچیوں کے بعد کبھی وہ نکاح کر دیتے تھے، رخصتی اگرچہ بلوغت کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور کا نکاح ہوا تو وہ غیر بلوغت میں تھی اور 9 یا 10 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوگی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک اس وقت 50 سال سے زیادہ تھی۔ اور اس بات کو شیعہ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ منتخب التواریخ اٹھا کے دیکھ لیں، علامہ ہاشم خراسانی کے اس نے یہ بات تسلیم کی ہے، ابن شہر کی مناقب علی ابی طالب اٹھا کے دیکھیں، ان سب کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کی اس وقت عمر 9 یا 10 سال تھی۔ تو اگر سیدہ عائشہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا 9 یا 10 سال کی عمر میں رخصتی ہو جائے تو یہ معیوب یا شرم کوئی کبھی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اگر نکاح اور رخصتی 10 سال کی عمر میں ہوتی ہے تو یہ بھی کبھی اور معیوب نہیں ہے۔ باقی رہا نبی کریم علیہ السلام کی 2 باقی بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ نکاح۔ ابو لہب جو کہ نبی کریم علیہ السلام کا رشتے میں چچا تھا، اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا۔ تو اس پر بھی واویلا کیا جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کا نکاح ہوا، پھر جناب ان کو طلاق بھی ہو گئی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے طلاق ہوگی۔ یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کا نکاح نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہوا ہے، لیکن غیر بلوغت میں نکاح ہوا، ابھی وہ چھوٹی عمر کی تھی، اس حالت میں ان کا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کر دیا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان کی رخصتی نہیں کی تھی، ان کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہوگی، لیکن طلاق کب ہوئی؟ آپ شیعہ سنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سورہ تبت یدا ابی لہب جب نازل ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قریبیوں کو اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان اور تبلیغ فرمائی، لیکن بالکل کھلے عام اعلانیہ طور پہ تبلیغ آپ نے نہیں فرمائی۔ تب سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ اے نبی اب کھلے عام لوگوں کو تبلیغ فرمائیں اور مشرکوں سے اعراض فرمائیں۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی اس وقت عمر 43 سال تھی، یعنی اعلان نبوت کے 3 سال بعد نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلانیہ طور پہ لوگوں کو دعوت دینی شروع کی۔ جب یہ اعلانیہ دعوت دی، حضور پہاڑ پہ چڑھ کے سارے لوگوں کو جمع کر کے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا، وہاں ابو لہب نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ نے سورہ تبت نازل فرما کے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت کی۔ جب اس کی مذمت میں قرآن کی صورت نازل ہوئی تو اب اس نے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے اپنے بیٹوں کو پر دباؤ ڈالا کہ عتبہ اور عتیبہ کو کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو تاکہ ان کو اذیت ملے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارا حضور کی 43 سال کی عمر کے بعد میں واقعہ پیش آیا، یہ پہلے واقعہ پیش نہیں ہے۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں اس بات کا واضح ثبوت ہے، موجودہ کتابیں اٹھا کے دیکھ رہے کہ سورہ تبت کے بعد یہ سارا واقعہ طلاق والا پیش آیا۔ تو اب 30 سال سے لے کر 45 سال تک 13 سال کے عرصے میں سیدہ زینب کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کی عمر بھی ظاہر ہے کہ 10 سال کے تقریباً قریب ہوگی، 9-10 سال کے قریب، ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ غیر بلوغت میں ان کو عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں واپس آ گئی، ان کو تکلیف اور اذیت دی گئی۔ تو لہذا اس میں کوئی استباعت، اس مسئلے میں 2 باتیں میں واضح کرنا ضروری سمجھوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو اپنی بیٹیاں دی تھی، کافروں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تھا؟ تو اس بات کا جواب دینے کے لیے میں اپنی طرف سے جواب پیش نہیں کروں گا، بلکہ اس کا جواب میں شیعہ علماء سے ہی پیش کر کے اس مسئلے کو انشاءاللہ واضح کروں گا۔ یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب، ملا باقر مجلسی کا حیات القلوب ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 870 ہے۔ ملا باقر مجلسی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی بعثت سے پہلے اور کافروں کو لڑکیاں دینا حرام ہونے سے قبل ابو العاص بن ربیع سے کر دی تھی۔ یعنی جب ابو العاص بن ربیع کے ساتھ حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو اس وقت کافروں کو بیٹیاں دینا کوئی حرام نہیں تھا۔ یہ ممانعت جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئی۔ اسی طرح شیعہ کی موت پر کتاب ہے مجمع البیان، سورۃ الہود کی آیت کے تحت علامہ طبرسی لکھتے ہیں
वकाना यजूज़ु फी शरअ तजवीज़ुल मुमिनत बिल काफिर के हूद अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की शरीयत में काफिरों को बेटियां देना जायज था। वकदा काना यजूज़ु ऐदन फी बदइल इस्लाम, कहते हैं ऐसे ही हमारे इस्लाम में भी शुरू में यह जायज था। वक़द ज़व्वज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनतहु मिन अबिल आस इब्न रबी क़ब्ल अन युसल्लिमा सुम्मा नुसिखा ज़ालिका, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी ज़ैनब का निकाह अबुल आस बिन रबी जो कि हज़रत खदीजा के भांजे थे उनके साथ किया। कब किया? क़ब्ल अन युसल्लिमा, उनके इस्लाम लाने से पहले, सुम्मा नुसिखा ज़ालिका, फिर बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया और काफिरों को बेटियां देने का हुक्म बाकी ना रहा। दो हवाले। तीसरा हवाला तनक़ीहुल मक़ाल की तीसरी जिल्द है। अल्लामा मामकानी ने इस बात को बयान किया और यहां एक बहुत बड़ा मसला मैं वाज़ेह करता चलूं कि ये जो शियों ने हुजूर की बाकी 3 बेटियों का इनकार का मसला उठाया है, ये इनकार का मसला कब उठा और ये बात कब उठाएगी? ये 4वीं सदी हिजरी में सबसे पहले एक शिया मुसन्निफ थे अली बिन अहमद अबुल कासिम अल कूफी। उसने एक किताब लिखी अल इस्तिगासा फी बिदअ सलासा, ये 352 हिजरी के लगभग ये फौत हुए अबुल कासिम कूफी। इस बंदे ने अल इस्तिगासा फी बिदअ सलासा किताब लिख के मुख्तलिफ शुबात और अकली तकौसले जो है ना वो बयान करके ये साबित करने की कोशिश की कि नबी करीम अलैहि सलाम की सिर्फ एक ही बेटी, बाकी 3 बेटियां हुजूर की बेटियां नहीं है। और इस बंदे का रद्द शिया मुसन्निफीन में से ये अल्लामा मामकानी है, तनक़ीहुल मक़ाल वाले। इन्होंने अल्लामा शेख अब्दुल्ला मामकानी ने रद्द किया है और उसके इतराजात के और अकली गौसलों के जवाब दिए हैं कि इसका और इसके दलाल का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सबसे पहले मसला अबुल कासिम कूफी ने उठाया और ये अबुल कासिम कूफी का अपना करैक्टर और किरदार क्या था और इसकी अपनी हैसियत अहले तशय्युह के यहां क्या थी। ये अल्लामा मामकानी ने तनक़ीहुल मक़ाल की जिल्द 2 सफ़ा नंबर इसका 265 है मेरे पास। अल्लामा मामकानी लिखते हैं कि ये जो अबुल कासिम कूफी है अल मुद्दई अल अलविया कज़्ज़ाबुन, ये अपने आप को हज़रत अली की औलाद होने का दावेदार था। कज़्ज़ाबुन लेकिन है क्या था? झूठा था, झूठ बोलता था। एक तो ये, और दूसरा आगे इसी सफ़े पे लिखा है कि ये जो अबुल कासिम कूफी है अज़हरा मज़हबल मुखम्मसा, इसने मुखम्मसा का मजहब जाहिर किया, यही ये मुखम्मसा का अकीदा रखता था। मुखम्मसा का अहले तशय्युह के यहाँ एक अकीदा है, बाज लोगों में, सब नहीं शिया, बाज जो है वो गाली किस्म के लोग वो मुखम्मसा का या तखमीस का अकीदा रखते हैं। और वो अकीदा क्या कि हज़रत सलमान फारसी, मिकदाद अबू ज़र ग़िफ़ारी और अमर बिन उमय्या दमरा हुमल मुवक्किलूना लिमसालिल आलम तआला अन ज़ालिका उलूवन कबीरा, कि ये जो 5 शख्सियात हैं ये पूरे दुनिया कायनात का निज़ाम अल्लाह ने इनको सुपुर्द किया हुआ है, इनके और ये कायनात का निज़ाम चला रहे हैं। तो ये तखमीस का अकीदा, ये तखमीस का अकीदा भी रखता था अबुल कासिम कूफी, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाकी 3 बेटियों का मुनकर था, हुजूर की बेटियों को तस्लीम नहीं करता था। और इसके साथ साथ बाद शिया ज़ाकिरीन की तरफ से ऐसे जाहिलाना और बिल्कुल लच्चर किस्म के इतराज़ात भी की जाते हैं। उनमें से कुछ बातें ये कि देखें अगर हुजूर की 4 बेटियां थी तो जब अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में हज़रत फातिमा ज़हरा ने बाग़ फ़िदक़ का मुतालबा किया तो बाकी 3 ने क्यों नहीं किया? ये सवाल और यह शुबा बिल्कुल जहालत पे और तारीख से अदम इल्म पर जो ना मबनी है। अब हर मुसलमान जो कोई किताबें पढ़ने वाला जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी 3 बेटियां 9 हिजरी से पहले इंतकाल कर चुकी थी। तो जो बेटियां 9 हिजरी से पहले इंतकाल कर चुकी है, जंग वो अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में बाग़ फ़िदक़ का मुतालबा कर रहे हैं, उनसे कोई बात समझ आती है अकल में? ऐसी अजीब किस्म का शुबा और एतराज पेश किया जाता है। इसी तरह एक ये भी पेश किया जाता है कि जब मुबाहला के वक्त नबी करीम अलैहि सलाम नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में आए तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही हुजूर के साथी, बाकी 3 बेटियां क्यों नहीं थी? तो उसका जवाब भी यही है कि मुबाहला 9 या 10 हिजरी, 9 के आखिर में या 10 के शुरू में वाक़या हुआ और इससे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाकी 3 बेटियां इंतकाल कर चुकी थी, उनका विसाल हो चुका था। और साथ ये भी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा और मौला अली इमाम हसन हुसैन को चादर ततहीर के नीचे लिया तो बाकी 3 बेटियों को क्यों नहीं लिया?
तो इस पर मैं जिम्मेदार तहकीक से अर्ज कर रहा हूं कि ये जो हदीस किसा और चादर ततहीर वाला वाक़या है, ये भी 9 हिजरी या 9 हिजरी के बाद का वाक़या है, जंग तबूक के बाद का वाक़या है। और उस वक्त तक नबी करीम अलैहिस्सलाम की बाकी तीनों बेटियां मौजूद नहीं थी। जब वो दुनिया में ज़ाहिर हो जाते तैयबा के साथ मौजूद ही नहीं थी, तो फिर उनका वहां चादर के नीचे होना, इसका क्या मतलब है? और साथ ये भी इतराज किया जाता है कि शुबह उठाया जाता है कि देखे जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा की जब शादी हुई, निकाह हुआ, तो आसमान से सितारा तुलू हुआ, बाकी बेटियों के शादी पर आसमान से सितारा क्यों नहीं तुलू हुआ? तो ये भी इस तरह की शिया रिवायत इस तरह की पेश करते हैं, ना कोई सनद, ना कोई किताब का हवाला, ना कोई रेफरेंस और किताब के हवाले के बगैर उसका जवाब नहीं है। इस तरह की बातें किताबों में चलती फिरती नजर आती हैं। और फिर एक और बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सैयदा फातिमा आती, हुजूर उनके लिए खड़े हुआ करते थे, बाकी बेटियों ने खड़े होने का जिक्र क्यों नहीं आता? तो ये भाई एक है अदम जिक्र, एक है जिक्र अदम। जिक्र अदम किसी चीज का ना होना और चीज है, और किसी चीज के होने के बारे में जिक्र ना होना ये और चीज है। अदम जिक्र और चीज है, जिक्र अदम और चीज है। तो अगर नकल नहीं है तो नकल होने से ये लाजिम नहीं आता कि चीज है ही नहीं है। और बाकी ये भी बात कि हम ये मानते हैं, हमारा ये नजरिया है कि नबी करीम अलैहि सल्लम की चारों बेटियों में से सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम अलैहि सल्लम को ज्यादा अजीज और प्यारी थी। जिस तरह हज़रत याकूब अलैहि सल्लम के 12 बेटे थे, तो इनमें से सबसे प्यारे कौन थे? हज़रत यूसुफ अलैहि सल्लम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे, और उनमें सबसे प्यारे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। तो ये एक फितरती बात है कि इंसान को किसी औलाद में से किसी के साथ ज्यादा मोहब्बत होती है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा फातिमा ज़हरा से ज्यादा मोहब्बत थी, वो सरकार की ज्यादा अजीजा और प्यारी थी। और बाकी हज़रत ज़ैनब के बारे में नबी करीम अलैहि सल्लम की हदीस अल मजमू ज़वाइद की जिल्द 9 में मौजूद है कि हिया खैरु बनात हिया अफदलु बनात, हुज़ूर ने फरमाया ये मेरी बेहतरीन बेटी है, ये मेरी अफजल तरीन बेटी है। ये सैयदा ज़ैनब के बारे में नबी करीम अलैहि सल्लम के जो हदीस सरकार के कलिमात मौजूद हैं। लिहाजा ये इस तरह के जो एतराज़ात हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और आखिर में एक बात यह कि जंगे ओहद के मौके पर नबी करीम अलैहि सल्लम की जो बाकी 3 बेटियां हैं उनका वहां आना जो है वो मज़कूर नहीं है। तो भी अगर आना या वहां उनका जिक्र मज़कूर नहीं है, तो उस जिक्र मज़कूर ना होने से, उनका हुजूर की बेटियां होने से इनकार करना, ये कोई अक्लमंद ऐसा दावा नहीं कर सकता। शिया की 20 मोतबर के किताबों से 20 हवाले मैंने बेहमदी ताला पेश किए हैं, और मुस्तनद किताबों से जिनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा खदीजा से 4 बेटियां हैं, हज़रत सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।